So let's move with stereoisomers. I hope आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वाली वीडियो देखी होगी और फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ आइसोमर्स कंप्लीट कर लिया है वो भी देख लिया होगा. नाउ लेट्स सी स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर्स जैसा कि हमने बेसिक्स ऑफ आइसोमर्स में देखा था, दो टाइप के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स. कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स दो टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. तो इस वीडियो में हम दो टाइप के आइसोमर्स देखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स दोनों छोटे टॉपिक है, तो हम इसको एक वीडियो में देख लेंगे. और ऑप्टिकल आइसोमर जैसा कि आपको पता होगा कि वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो उसमें पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है और फिर हम उसमें क्वेश्चन करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. Now we will start with conformational isomers. So what is conformational isomers? Conformational isomer जिसमें दो एटम एक सिंगल बॉन्ड से अटैच हों. जैसे कि यहाँ पे दो कार्बन है जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, और सेकंड कंडीशन ये है कि उस अटैच्ड एटम से एक और एटम अटैच होना चाहिए, जो कि मिनिमम कंडीशन है. सो व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन? दैट फोर there should be four atom in a consecutive manner, one, two, three, four atom in a consecutive manner, and there is a single bond between them so that they can rotate. This is the minimum requirement of conformational isomers. There are two types of presentation. So there is a two way of projection of this conformational isomer. First, there is sawhorse projection. Sawhorse. This is a sawhorse projection where we have a side view. यहाँ पे हम साइड से देख रहे हैं इस एटम को. दिस इज साइड व्यू, दिस इज sawhorse projection. And the new one is, you can learn by new one, that is a Newman's projection. So Newman's projection is basically the new form. So now let's see various different forms of these isomers and stability of each. First, see staggered isomers, staggered form of conformational isomer. So what is staggered form? Staggered form in which this this bond is rotated such the similar molecule are not lie one on another. Means there is a CH3, there is a CH3, you can see both the CH3 at the same time. But what if the CH3 and this CH3 lie one after another? You can't see the one. So this is a gauge form or staggered form in which there is a no completely, means there is no complete covering of atom by the similar atom. So this is the staggered form, and one of the most important staggered form is anti-staggered form. Means similar molecules lie just opposite. CH3 is here, and this of the first carbon CH3 is there, and of the second carbon CH3 is there. It's just opposite. This type of form is called as anti-staggered, and completely this is more stable form as when we think of the conformational isomers, because there is a least steric hindrance. Means the big molecules lie opposite side, so there is a least steric hindrance. So this is very important to remember. And the another form, that is eclipse form, which is not given here. In eclipse form, the CH3 and CH3 lie one over another. Means they both lie one over another, and you can see only one-sided atoms. Means only the atoms of the first carbon, because the atom of the second carbon is just behind that, and you cannot see them. So let's see the question related to conformational isomers. For- So the third question, below gauge form, this is a gauge form. What will be the Z? What will be the Z molecule? So
this gauge form should be the most stable. So what do you think, what should be the answer? The answer, the options are CH3, ethyl group, this ethoxycarbonyl group, or this phenyl group. So the most acidic one here is this ethoxycarbonyl group. So this is most acidic group here, and when we see here, this is a basic group. So when acidic group should they will there will be the more stability because of the opposite attraction. Means this is a positive basic form and this is a negative charge containing acidic form. So there will be more attraction and this form will be the most stable form. So the answer should be third. Now let's go to the second part. Now let's टॉक अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने सिस और ट्रांस के बारे में बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। जैसे कि यहाँ पे मैं क्विकली बता देता हूँ कि क्या था। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर सिमिलर एटम मान लो H और H यहाँ पे अपोजिट साइड में है तो ये ट्रांस होगा, और अगर H और H सेम साइड में होते तो सिस होता। तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे बताएं। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर एक साइड हो तो 2 की पावर n होगा, तो n इज इक्वल टू 1 होगा, और 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो अगर एक साइड है तो आपको पता हो कि सिस और ट्रांस ही होंगे उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल, तो उसका आंसर 2 होगा। और अगर उससे ज़्यादा हो गए, मान लो कि 2 साइट हैं जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, तो 2 की पावर 2 होगा, और फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसके 4 होंगे जिसका कॉम्बिनेशन होगा सिस सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस और ट्रांस सिस। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो, और अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो क्या होगा प्रॉब्लम, वो हम यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द गिवन कंपाउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऐसे साइट हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों साइड पे डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों ही साइड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो इसका आंसर होगा 4, जो कि है 2 की पावर 2। लेकिन ये इनकरेक्ट है क्योंकि वो जो फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए है। तो अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो प्रॉब्लम क्या होगी जो इस कंपाउंड में हो रही है, यहाँ पे देखते हैं। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में जब ये दोनों साइड सिस सिस होंगे तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ट्रांस ट्रांस होंगे दोनों साइड पे तो एक होगा, मतलब 2 हो गए। और अगर सिस ट्रांस है तो एक और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी, तो टोटल 3 होगी। और लेकिन अगर ट्रांस सिस है तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने पे सिस ट्रांस और ट्रांस सिस सेम हो जाते हैं, तो वो दोनों एक अलग एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, तो वो भी सिर्फ ट्रांस सिस और सिस ट्रांस इक्वल हो जाएंगे, तो वो थर्ड ही माना जाएगा, या तो वो सिस ट्रांस हो या ट्रांस सिस हो। तो ये 3 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे अगर कंपाउंड इस टाइप का है, कंपाउंड अगर इस टाइप का है जो कि सिमेट्रिकल हो। तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने वो इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है जो एनसीईआरटी में नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।